All right, everyone, let's start. IGCSE Paper 1 Multiple Choice Score, October November 2024, Variance 11. Question number 1. The table shows the melting and boiling point of 4 elements. Okay. Which element is a gas at room temperature and pressure? Obviously, if element is a gas, then it must have a low melting and boiling point. And why it has a low melting and boiling point? Because it exhibits weak van der Waals forces, and weak van der Waals forces, also called intermolecular forces. So right answer obviously is going to be an A because सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बाकी तो सब में ज्यादा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. 4 statements about the arrangement or movement of particles are given. Okay. Particles are packed in a regular arrangement. So that's true because solids में सारे के सारे particles जो हैं वो packed होते हैं. So in solid they are closely packed, tightly packed with each other. In solids particles are randomly arranged, नहीं regular arrangement होती है. That's incorrect. Particles move over each other. This happens in liquid state, which means it is incorrect. And now particles vibrate about fixed positions. Yes, it happens in solid state only. So solid states are related. First or fourth option correct है, which is why B is going to be the right answer. Okay. So हमने जो particles की movement और arrangement है वो देखनी थी. ये particles की regular arrangement है और ये उसकी movement है. तो obviously और ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों solid में होती हैं. इसका मतलब B is going to be the right answer. One atom of an element contains 12 electrons, 12 protons, and 13 neutrons. How many nucleon does this atom contain? Nucleon is basically the nucleon number. And nucleon or nucleon number is the same thing. And we need to find it by using protons and neutrons. So it's going to be 25. So nucleon number of this element is going to be 25 because मैंने protons को और neutrons को add कर दिया. Okay, so we need to add these two species. A diagram representing a mixture of 4 particles is shown. Which statement describes the mixture of particles? It is a mixture of 2 different compounds. I think right because ये दोनों different compounds हैं, right? ये दोनों same है और ये दोनों different हैं, मतलब दो different molecules all together in a mixture. एक molecule ये है, दूसरा molecule ये है. So first statement is right, but बाकी options भी देखते हैं. It is a mixture of 2 different elements. नहीं, ये compound है तो element तो नहीं है. So ये incorrect हो गया. It is a mixture of 4 different compounds. 4 different compounds नहीं है. ये first compound है, ये second compound है. So 4 different नहीं है. 2 compounds हैं सिर्फ. इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत. It is a mixture of 4 different elements. नहीं जी, ये दोनों elements same है. ये एलिमेंट सेम है जबकि ये एलिमेंट भी सेम ही है. ठीक है, क्योंकि सेम कलर सेम सर्कल से शो कर रहे हैं वो. सो टेक्निकली आपके पास एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है. so बेसिकली 2 ही एलिमेंट हैं, 4 नहीं है. सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए. क्वेश्चन बाय द वे मैं एक चीज और बता दूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा अप्लाई करें.
ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट इज बेसिकली वाटर। जो बीच में एटम है शेडेड, वो ऑक्सीजन है, और ये दोनों एटम हाइड्रोजन है, राइट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक मॉलिक्यूल मेरे जहन में आ रहा है। हम्म, अच्छा, मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे नहीं सकता। ओके, ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से भी देखूं, तो भी मुझे 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 4 अभी भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा सा बेहतर अंदाज से करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, राइट। एलिमेंट नहीं है ये। आप कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं, ये कह सकते हो, या 2 कंपाउंड्स कह सकते हो, बट 4 एलिमेंट नहीं है ये। ओ माय गुडनेस। ओके, 4 एलिमेंट्स नहीं है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Chlorine reacts with sodium to form sodium chloride. What happens to the sodium atom during this reaction? So sodium chloride is basically an ionic compound. और ionic compound में क्या होता है? Metals forms cations by the loss of electron. Whereas non-metals forms anion by the gain of electron. So examiner is looking for what happens when sodium atoms during this reaction. So sodium is basically a metal. So obviously it loses electron and form cation. So if it loses, इसका मतलब गेन तो हो नहीं सकता, और एनाइन भी नहीं बना सकता, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। लूजेस इलेक्ट्रॉन, दैट्स करेक्ट, एंड फॉर्म्स एनाइंस, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि कैटायन होगा। गेन इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डी, because when it loses electron it forms cations, that's true. Nitrogen monoxide is simple molecular compound which shows the properties of nitrogen monoxide. Boiling point, तमाम सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। मैंने आपको सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हेडिंग दी है, उसमें ये लिख पाया है मैंने आपको। एंड ऑब्वियसली सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। Metal X is found in group 2 of the periodic table. If it is found in group 2, obviously 2 valence electrons होंगे, and obviously metal होगा। अच्छा, metal क्या दिया उन्होंने खुद,
मेटल कह दिया उन्होंने both. X is separately, S is reacted separately with dilute sulfuric acid and with oxygen. So अगर मैं X को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊं तो ये बनेगा सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, और अगर मैं X को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये बनेगा मेटल ऑक्साइड विच इज XO। और जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि मैंने आपको मैग्नीशियम दिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया और आपने मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना दी। एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को मैंने फॉलो करते हुए ये इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट की थी, राइट। वो पूछ रहे हैं आपसे कि विच रो आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स ऑफ ईच रिएक्शन। प्रोडक्ट विद ऑक्सीजन XO बनेगा, ठीक, ये बना हुआ XO, और XSO4 बनेगा, तो XSO4 और हाइड्रोजन गैस ये है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। What is the relative molecular mass of sulfuric acid? That's easy. We have done this in class. I know the answer, but let me show you the working. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 98। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। Question number 9. The equation for the production of ammonia is shown. Which mass of nitrogen is required to make 51 tons of ammonia? Okay, what mass of nitrogen is required to make 51 tons of ammonia? So I know the mass of ammonia, which means first of all I need to find out the moles of ammonia, right? चलो सबसे पहले moles of ammonia find out करते हैं। तो मैं 51 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अमोनिया के एमआर से, विच इज 17। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट टन्स इनटू ग्राम्स, ओके, आप इसको स्ट्रेट अवे 51 से ले लो। तो 51 डिवाइडेड बाय 17 इज गोइंग टू बी 3 moles. In the second part, नाइट्रोजन और अमोनिया 1:2 का रेशियो है। अगर आपने 3 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताइए ये कितने होंगे। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इट्स गोइंग टू बी 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने मास कैलकुलेट करना है, सो आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइट्रोजन के एमआर से, विच इज 28। इट इज गोइंग टू बी 42। तो जाहिर सी बात है आप ग्राम नहीं लिखे, आप इसको टन्स कर दीजिए। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Question number 10. The diagram shows the apparatus used to electroplate a nickel shape with silver. यानी मैं इलेक्ट्रोप्लेट कर रहा हूं सिल्वर के साथ इस निकल शेप को। सो जो एनोड है वो सिल्वर का बना हुआ है, यानी इम्प्योर सिल्वर। जो कैथोड है वो निकल का बना हुआ है, निकल शेप का है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑब्वियसली सिल्वर नाइट्रेट का होगा, बिकॉज मुझे सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज बेसिकली कैथोड, positive electrode is basically anode, okay, so negative electrode is basically cathode और cathode पे nickel shape है। positive electrode is basically anode और उस पे silver rod है, और electrolyte जो है वो silver nitrate का होना, electrolyte जो है वो silver nitrate का होना चाहिए। so right answer is going to be B। 11. Concentrated aqueous sodium chloride and dilute sulfuric acid are each electrolyzed separately using inert electrodes। तो सबसे पहली तो बात ये है कि जनाब मैं सोडियम क्लोराइड को सॉल्व कर लेता हूं, मुझे यहां से सोडियम आयन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा,
हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा और क्लोराइड आयन मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्चार्ज होगा एट कैथोड बिकॉज इट इज क्लोजर टू द लाइन ऑफ डिस्चार्ज, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हैज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड सल्फेट आयन, राइट। आप नोट करें, ये हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, हाइड्रोक्साइड आयन इज क्लोजर टू द लाइन ऑफ डिस्चार्ज, सो ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज होगा एट एनोड। सो वो एग्जामिनर कह रहे हैं अ गैस इज प्रोड्यूस्ड एट ईच इलेक्ट्रोड फॉर बोथ इलेक्ट्रोलिसिस। सही बात है, यहां पर भी दोनों गैसेस हैं, यहां पर भी दोनों गैसेस हैं और सेम गैसेस हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट तीनों स्टेटमेंट्स ओह माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, ये गलत होगा बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। नो, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। सही है। So 1 and 3 options are correct and therefore A is going to be the right answer. Okay. So you guys have to be very very careful while read the options. Okay. देखिए मुझसे भी गलती है, मैंने सिर्फ इतना पढ़ के आंसर दे दिया, मैंने कैथोड को नहीं ओवरलुक कर दिया, राइट। सो यू नीड टू read the question very carefully. Let's move on to the next part. 12. Which reaction pathway diagram represents an endothermic reaction? भाई जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। सो ये बात ऑप्शन बी के अंदर इंक्लूड है, ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम हो गई, और ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एग्जामिनर ने हमें एंडोथर्मिक कहा हुआ है। ठीक, सो ए बी रॉन्ग, डी बी रॉन्ग। नाउ कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी। ओ माय गॉड, सी भी रॉन्ग बिकॉज ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है। भाई प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है, तो यहां पर भी तो यही लिखा हुआ है, एक ही बात है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है बस। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये जो आपके पास डिफरेंस है ये बेसिकली डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज पॉजिटिव। ओके, द डायग्राम शोज अ मैच। ओके, ये मैच स्टिक है आपके पास। By striking the match, a chemical reaction takes place. Which row describe the chemical reaction? Um, striking a match is basically an exothermic reaction. Why? Because it is a combustion reaction. And combustion is always exothermic. आप ये भी कह सकते हैं कि ये burning है, because burning is combustion and burning, if combustion then it is exothermic. तो इसका मतलब आंसर या तो ये सी होगा या डी होगा। रीजन, बिकॉज एनर्जी इज गिवन आउट एज द मैच बर्न्स। बिल्कुल सही बात है, जब आप मैच को जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बिल्कुल सही बात है। राइट, अच्छा इसमें ये भी तो है ना कि बिकॉज एनर्जी इज यूज टू स्ट्राइक। नहीं जी, मैं एनर्जी नहीं देता हूँ, मैं स्ट्राइक करता हूँ और एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो बर्न हो जाता है। सो इसका मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी सी। 14. Hydrogen peroxide decomposes to form water and oxygen. The equation is shown. Manganese ore oxide catalyzes this reaction.
Which statement about manganese 4 oxide is correct? By the way, manganese 4 oxide का फॉर्मूला होता है MnO2 और मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्लास में डिस्कस किया है. सो जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, राइट. कैटलिस्ट का एक और भी फंक्शन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है. कैटलिस्ट का एक और भी फंक्शन है, after the end of the reaction will recover as it is. Now in the first it increases the rate of reaction, बिल्कुल सही बात है. Second, it increases the total volume of oxygen gas produced. By the way, catalyst has nothing to do with the composition. No effect of composition. So second statement is wrong. It will have the same mass at the end of the reaction as it is does at the start of the reaction. That's true. अगर आपने 1 ग्राम यूज किया था तो एंड में 1 ग्राम रिकवर हो जाएगा. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, 1 and 3 is right, and therefore C is going to be the right answer. Question number 14. Question 15. 4 students collect the gas produced from the reaction of calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. So भाई जब कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. Now examiner is saying कि each student record the time taken to collect the volume of gas. ठीक है. Which result show the highest average rate of reaction? तो भाई आप इन सबको डिवाइड करो, 15 को डिवाइड करें 20 से तो रेट आ जाएगा आपके पास. 15 divided by 20 is going to be 0.75. ये हो जाएगा 50 divided by 40 is 1.25. Then 75 divided by 80 is basically 0.9375. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं 90 को डिवाइड कर दूं 100 से तो मेरे पास रेट आ जाएगा 0.9. तो सबसे ज्यादा रेट जो है वो टेक्निकली कहाँ आ रहा है? इस एक्सपेरिमेंट बी के अंदर आ रहा है. जो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ये मैंने फॉर्मूला कौन सा किया है लिया है ये मैं बता देता हूँ आपको. मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसमें रेट का एक फॉर्मूला बताया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम टेकन. ठीक है, ये मैंने एक जेनरिक फॉर्मूला दिया था आपको. अब जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी थी, तो अगर मुझे रेट निकालना है तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, बट मैं वॉल्यूम ओवर टाइम टेकन कर लूंगा. कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने सिर्फ वॉल्यूम लिया हुआ है. सही है. Question number 16. The equation for the reaction between hydrogen and oxygen is shown. Which statement explain why this is a redox reaction? यार ये मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो लूजेस इलेक्ट्रॉन. जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, और जब खुद रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. सो गेन इलेक्ट्रॉन, right? So that means oxidation and reduction takes place simultaneously, and therefore A is going to be the right answer. क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि redox reaction क्यों होता है, ये बताओ. वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है इसलिए redox होता है. Which statement about dilute ethanoic acid are correct? By the way, dilute ethanoic acid is weak organic acid, और जितने weak acid होते हैं
वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं या पार्शली आयोनाइज होते हैं? एंड ऑब्वियसली जितने वीक एसिड होते हैं उन सबकी पीएच 4 to 6 की रेंज में होती है। ओके, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ये इथेनोइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, क्योंकि आपने इसको ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ठीक है ना? तो आप ये भी कह सकते हैं कि तमाम ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। चलें अब ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ पीएच ऑफ 8, गलत। पीएच की रेंज मैंने बता दी है, 4 to 6 होती है। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट। इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑरेंज टू येलो। ऑरेंज टू येलो नहीं होता। अगर ये वीक एसिड है तो ऑब्वियसली ये रेड कलर शो करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो ये भी गलत। सही है। It reacts with magnesium to produce carbon dioxide. Uh, Hold on. Am I missing something? Wait, hold on. It reacts with magnesium to produce carbon dioxide. So whenever it reacts with magnesium, obviously it produces hydrogen gas, not carbon dioxide, which means fourth is wrong. So one is wrong, fourth is wrong. सिर्फ टू का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सिर्फ थ्री का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन टू और थ्री का ऑप्शन गिवन है, इसका मतलब टू एंड थ्री इज करेक्ट। और बाय द वे मुझे लगता है कि ये जो आपके पास दिया हुआ है ये वीक एसिड के लिए होता है, तो येलोइश ऑरेंज बेसिकली फॉर वीक एसिड्स। ये वीक एसिड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, सही है। और येलोइश ऑरेंज कलर का अगर मैं कॉम्बिनेशन सोचूं एक मिनट के लिए, अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं कॉम्बिनेशन सोचता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, तो जो एब्जॉर्ब होता है उसका ऑपोजिट रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। सो आई थिंक 2 and 3 इज द राइट आंसर। सो तमाम वीक एसिड का जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है वो येलोइश ऑरेंज होता है। ओके, ये याद रखिएगा। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। An aqueous solution of Z turns universal indicator paper purple. Okay. Which row identifies the color of the methyl orange and thymolphthalein when they are added separately to an aqueous solution of Z? Mm, 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 mm. Z, Z बेसिकली क्या होगा आपके पास? Hmm, याद रखिएगा कि अगर आपके पास पर्पल कलर है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो इसका मतलब सोल्यूशन एल्कलाइन है। ठीक है, इन alkaline solution it shows blue color. In alkaline solution it shows yellow color. So methyl orange shows yellow, thymolphthalein shows blue. So right answer is going to be an A. Okay, I hope it makes sense to you. I hope आपको क्लियर हो गया हो पॉइंट कि किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। 19. Which row describe the solubility of lead to chloride and lead to sulfate in water? ये भी insoluble in water है, solubility चार्ट बताया था मैंने, और ये भी insoluble in water है। That's an easy question. Right answer is going to be D. 4 different groups of oxides are shown
Which statement about these groups of oxide is correct? 1, 2 and 3 contain basic oxide only. ये बात तो सही है, ये तीनों के तीनों बेसिक हैं, लेकिन 2 के अंदर ये एसिडिक है, 3 के अंदर ये एसिडिक है, और ये बात सही है कि ये तीनों के तीनों एसिडिक हैं। सही है, ये तीनों एसिडिक हैं, ये सही है बिल्कुल बात। ये तीनों बेसिक हैं, ये भी सही है बात। ये दोनों बेसिक हैं लेकिन ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। एंड गाइस, लेड टू ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। पढ़ाया मैंने आपको, इक्वेशंस भी दी हैं, और ये बेसिक। चलो सभी लिख देते हैं अब, ये भी बेसिक सही है, और ये भी बेसिक। सो 1, 2 एंड 3 कंटेन बेसिक ऑक्साइड ओनली। तो 1 में सिर्फ बेसिक है, 2 के अंदर सिर्फ बेसिक नहीं है, एसिडिक भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। 3 कंटेन बेसिक ऑक्साइड नहीं, 3 कंटेन में एम्फोटेरिक भी है, एसिडिक भी है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। 2 में जो है वो बेसिक भी है, एसिडिक भी है। 3 में बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक तीनों है, तो ये गलत। और 2 में जो है वो बेसिक और एसिडिक है, ये भी गलत। 4 में सारे के सारे एसिडिक हैं, ये भी गलत, जबकि वो कह रहे हैं बेसिक ओनली, तो इसका मतलब ये भी गलत। 1 कंटेन बेसिक ऑक्साइड ओनली, ये बात बिल्कुल ठीक है। 4 कंटेन एसिडिक ऑक्साइड ओनली, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देख लीजिए, ये तीनों के तीनों बेसिक हैं, और ये चारों के तीनों एसिडिक हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, which means C is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. अच्छा, 1 कंटेन एसिडिक ऑक्साइड ओनली, नहीं भाई, सारे के सारे बेसिक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि 1 में सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट था, इंटरेस्टिंग था। 4 steps in the preparation of a soluble salt from a dilute acid and solid metal oxide are listed. पहली बात, soluble salt बना रहे हैं हम। दूसरी बात, उसको बनाने के लिए हम डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं, और उसका मेटल ऑक्साइड। यानी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जो मैंने क्लास में करवाई है। ये है बेसिक ऑक्साइड, ये है एसिड, इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो सबसे पहला काम, इसको बनाने के लिए मैं एसिड को वार्म करूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। जब एसिड वार्म हो जाएगा तो मैं उसमें एक्सेस मेटल ऑक्साइड ऐड करूंगा, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी अनरिएक्टेड सॉलिड होगा उसको सेपरेट करूंगा मैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो ये मेरा थर्ड स्टेप होगा। और ऑब्वियसली फिर सोल्यूशन को सैचुरेट करूंगा इवेपोरेशन करके, और रूम टेम्परेचर पर कूल करके क्रिस्टल्स हासिल करूंगा, ये मेरा फोर्थ स्टेप होगा। सही है, दैट्स व्हाट वी हैव डन एग्जैक्टली इन द क्लास। तो जो मैंने क्लास में करवाया ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब लिख के दिया है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज स्टेप्स? 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3 and 4, and obviously ओ माय गुडनेस, ये मैंने अरेंज तो कर दिया, लेकिन इसको अरेंज करोगे ना, सबसे पहले इसको फर्स्ट स्टेप बोलोगे, उसके बाद थर्ड को सेकंड नंबर पे लेकर आओगे, फिर इस फोर्थ को थर्ड नंबर पे लेकर आओगे, और सेकंड को लास्ट पे लेकर आओगे। अब ये चेक कर लो कि ये कहाँ लिखा हुआ है, 1, 3, 4, 2, ये बी में लिखा है, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यानी ऑर्डर ये है, लेकिन इस ऑर्डर को मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना है। ठीक है, which pair of elements react together most violently? मोस्ट वायलेंट वहां पर होगा जहां एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हाई होगी। जहां दोनों एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हाई होगी, उनका आपस में जो रिएक्शन है वो मोस्ट वायलेंट होगा।
सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम और लिथियम में से किसकी है? पोटेशियम की। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्लोरीन और आयोडीन में से किसकी है? क्लोरीन की। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बिकॉज पोटेशियम और क्लोरीन दोनों रिएक्टिव हैं। क्लोरीन अपने ग्रुप में आयोडीन के मुकाबले में रिएक्टिव है और पोटेशियम लिथियम से रिएक्टिव है, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, question 23. Rubidium is an element in group 1 of the periodic table. Which would describe a physical property and a chemical property of rubidium? Rubidium group 1 का है, तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट होते हैं ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स, ये हमने पढ़ा है, फैक्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर से रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और रुबीडियम तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। ओह माय बैड, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। क्वेश्चन 24. Which would describe the state and color of the bromine at room temperature and pressure? भाई ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन है, एंड ऑब्वियसली ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। सो ये लिक्विड और रेड ब्राउन ये है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. Part of the periodic table is shown. Which element is metal? Metal. So पहली बात ये कि ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये आर्गॉन है और ये एल्यूमिनियम है। आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है? मेटल, सॉरी नॉन मेटल। ये भी क्या है आपके पास? नॉन मेटल। और एल्यूमिनियम क्या है आपके पास? मेटल। So examiner is looking for a metal, which is why A is going to be the right answer. Question 26. Which compound is made from elements that are all in the same period? Same period. Again, interesting fact, interesting perspective है question का। एल्यूमिनियम पीरियड 3 में है, सल्फर पीरियड 3 में है, लेकिन ऑक्सीजन पीरियड 2 में है, तो सेम एलिमेंट सेम पीरियड में तो नहीं हुआ, गलत हो गया। कार्बन पीरियड 2 में है, ऑक्सीजन पीरियड 2 में है, लेकिन हाइड्रोजन पीरियड 1 में है, अगेन सेम नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। ये 1 है बेटा, हाँ। अरे यार, एक तो मैं 1 बहुत बुरा बनाता हूँ, पर कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखिएगा, लिथियम जो है वो ग्रुप 1 में है, सॉरी, ओ माय गुडनेस, पीरियड क्या रहा है ना। लिथियम पीरियड 2 में है, नाइट्रोजन भी पीरियड 2 में है, ऑक्सीजन भी पीरियड 2 में है, इसका मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट सेम पीरियड में है, विच इज बाय सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और मुझे पता है कि पीरियड नंबर जो है वो रोमन इंग्लिश न्यूमरल्स में रखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे इंग्लिश न्यूमरल्स रिप्रेजेंट किए। ओके, ग्रुप नंबर जो है वो रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। खैर वो आपसे लिखवा तो नहीं रहे, लेकिन सिर्फ आपसे जज करवा रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिल्वर मेटल इज सेपरेटली टेस्टेड विद कोल्ड वाटर, ओके, स्टीम एंड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाय द वे, सिल्वर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, ना वो स्टीम से रिएक्शन करेगा, ना वो एसिड से रिएक्शन करेगा, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Which statement about extraction of iron from hematite is correct? Air is blown into the blast furnace to oxidize molten iron. और नहीं भाई, ये तो होता ही नहीं है, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड is reduced by coke to carbon monoxide. That's true. इक्वेशन ये होती है हमारे पास, ये हमने इक्वेशन करवाई थी आपको, अगर आपको याद हो। So ये बिल्कुल सही बात है, एंड आई थिंक बी आंसर है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। हेमाटाइट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कार्बन टू मोल्टन आयरन। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। द slag produced is denser than molten iron. uh, नहीं, सही है नहीं। So right answer is going to be B. What is alloy? Alloy is a mixture of metal, compound of two metallic elements, compound of metallic and non-metallic elements, is a pure metallic element. Pure metallic element तो नहीं होता, क्योंकि दो different elements होते हैं obviously,
और जब दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट आएगा। फिर वो कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ मेटल, दैट्स ट्रू, एंड एट लीस्ट वन अदर एलिमेंट, दैट्स ट्रू। ये भी सही है। मिसाल के तौर पे आपके पास आयरन है, कार्बन है, स्टेनलेस स्टील में, मिक्सचर ऑफ मेटल भी और कोई एक अलग से एलिमेंट भी ऐड हो जाए, कंपाउंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। होल्ड ऑन, मैं एक जगह कहने को तो आई थिंक सो, मुझे पता है सी इज राइट, लेकिन ए जो है वो भी गलत है और बी भी गलत है, बिकॉज एलॉय कंपाउंड नहीं होता, मिक्सचर होता है। एलॉय कंपाउंड नहीं होता, इनफैक्ट मिक्सचर होता है, विच मीन्स ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, एंड करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, माय गुडनेस। एलॉयज बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन भी याद कीजिएगा एलॉयज की जो मैंने दी हुई आपको। 30, the diagram shows an experiment to investigate how paints affect the rusting of iron. What happens to the water level in tube S and T? अच्छा, अब जाहिर सी बात है दोनों ट्यूब्स में एयर है, और एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब दोनों ट्यूब्स में एयर है। अगर ये पेंटेड आयरन है तो जाहिर सी बात है इस पेंटेड आयरन की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगा। सो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर यूज नहीं होगी, जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाटर लेवल राइज भी नहीं होगा। सो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, सही है। नो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नो चेंज इन वाटर लेवल। अब जाहिर सी बात है ये आयरन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये आयरन से रिएक्शन कर लेगा। सो ऑक्सीजन एंड आयरन रिएक्ट टुगेदर। जब ऑक्सीजन का वॉल्यूम यूज होगा तो वाटर लेवल राइज होगा, वाटर लेवल राइजेस इन द ट्यूब। So right answer is going to be D. Which statement describes clean, dry air? Uh, Air is technically a mixture. एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी गैसेस भी तो होती है। तो ये जो ओनली की टर्म है ये गलत है, अदर गैसेस भी तो होती हैं। एग्जिस्ट इन एयर। तो इसका मतलब सिर्फ दो गैसेस नहीं होती, बाकी भी होती है। अच्छा, ये गलत हो गया। इट इज अ मिक्सचर। अच्छा, ये कंपाउंड भी लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, मिक्सचर होता है ना, कंपाउंड नहीं हो सकता वैसे ही। तो ये कंपाउंड एग्जामिनर ने लिख दिया, इसका मतलब ये भी गलत। अच्छा, एग्जामिनर ने मिक्सचर लिखा है ठीक, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 21% नहीं होता, 78% होता है। ऑक्सीजन 78% नहीं होता, 21% होता है। और ओनली, ओनली का भी टर्म गलत है, तो ये वैसे ही गलत होगी। चले, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, दैट्स ट्रू, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स ट्रू। तो मुझे लगता है सी माइट बी द राइट आंसर, लेकिन डी भी देख लेते हैं। इट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड नहीं होता भाई, मिक्सचर होता है, तो ये भी गलत। 31 आंसर इज गोइंग टू बी सी। विच वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज और वाटर बनाते हैं. सो ये सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, माय बैड. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा, वाटर रिएक्शन करेगा. माय गुडनेस, एक मिनट, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा, वाटर रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा. हाँ तो ये, ओ माय गुडनेस, ये रॉन्ग है. ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, वाटर से रिएक्शन करता है. ग्लूकोज फॉर्म होता है, रिएक्ट नहीं करता. वाटर नहीं बनता, ऑक्सीजन बनती है. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. I think I'm tired now because I'm working since morning and I have solved around 5 papers altogether, including O levels and AS, which is why कुछ mistakes हो रही हैं मुझसे यहाँ. Anyway, let's finish this paper. 33. Some adverse effects caused by air pollutants are listed. Air pollutants. Okay. Let me focus more. Air pollutants. Acid rain, photochemical smog, respiratory problems. Which air pollutant contributes to all three? यार तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो NO2 बनाते हैं और NO2 causes acid rain, राइट. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाते हैं, PAN से रिएक्शन करके. एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो causes lungs irritation also, या lungs inflammation. So I believe nitrogen dioxide is the correct answer. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एसिड रेन कॉज नहीं करती, मीथेन जो है वो एसिड रेन कॉज नहीं करती, पार्टिकुलेट जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं लेकिन एसिड रेन नहीं बनाते. ठीक है. Petroleum is an important raw material that is separated into useful products. Which term describes petroleum and the method used to operate it? Petroleum is a mixture of hydrocarbon. So इसका मतलब कंपाउंड तो नहीं होगा, मिक्सचर होगा. And separation can be done on the basis of fractional distillation, on the basis of their boiling point. So right answer is going to be D. Question 35. Which statement about homologous series are correct? Carboxylic acids have similar chemical properties. All carboxylic acids have similar chemical properties. That's true. Functional group same, chemical properties same, right? All alcohol have same molecular mass. भैया same नहीं होता, different होता है. मेथनॉल का डिफरेंट है, एथेनॉल का डिफरेंट है, प्रोपेनॉल का डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट ही होगा ना, सेम थोड़ी हो सकता है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ईथेन एंड इथीन आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज. खुदा का खौफ करें, सेम होमोलोगस सीरीज नहीं है भाई, ये एल्कीन है. अबे क्या बन रहा है भाई, दिस इज एल्कीन. इसमें डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम. दिस इज एल्कीन. इसमें सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम्स. इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये गलत हो गया. सेम नहीं है, डिफरेंट है. डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं. इथेन एंड प्रोपेन आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज. बिल्कुल सही बात है, दोनों एल्केन्स हैं. सो 1 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, और इसी वजह से राइट आंसर है बी. Oh God, I'm tired, guys. I've solved, this one is my 8th paper in today. I've solved total 8 papers. 6 O levels,
2AS. So I'm tired extremely. It's very difficult to finish this paper, seriously. Anyway, let me finish. The formulae of two organic compounds P and Q are shown. P is basically an alcohol because of this OH group. Its name is propanol. और बहुत तमीज से कहूँ नाम तो propanol. Q is basically an alkene. Why it is an alkene? Because of the presence of this functional group double bond. So P is basically an alcohol and Q is basically an alkene. So right answer is going to be B. 37. Which fuel is manufactured by fermentation? Oh my goodness. Fermentation. My glucose is converted into ethanol. And ethanol is basically a fuel. Examiner भी fuel कह रहे हैं. The right answer is going to be B. Which statement about the disposal of waste plastic is correct? They are put in landfill sites, that's true, where they quickly decompose, cannot decompose because they are non-biodegradable. So option A is incorrect. Landfill sites पे सही रखते हैं, quickly decompose नहीं होते, cannot decompose. Next, they are burned to produce non-toxic products. Toxic products produce करते हैं भाई. Toxic products like dioxins. बहुत ही खतरनाक कंपाउंड होता है डायोक्सिन्स, ठीक है, तो ये भी गलत. They accumulate in oceans, correct. Where they are harmful to aquatic life, correct. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. दे आर डिसॉल्व इन वाटर. ओ भाई, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर आप किसी भी शॉपिंग बैग को, प्लास्टिक बैग को उठाकर रख दीजिए पानी के अंदर, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 100 years, नथिंग हैपेंड, राइट. इनसॉल्युबल इन वाटर. Okay, 38. Oh my goodness. Dyes are colored substances. The chromatogram of the substance X, 4 different dyes, 1, 2, 3, and 4 is shown. Substance X contain only 2 dyes. Which 2 dyes are present in substance X? So एक dye जो है वो 2, क्योंकि वो X के अंदर है, और दूसरी dye जो है वो 3, 4 भी है, 1 भी है. तो अब जाहिर सी बात है 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो मैं 1, 3, 4 को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि ये सबका मिक्सचर होगा. सो डिस्टिंग्विश करने के लिए आई थिंक आई विल गो फॉर 2 and 3. सही है, 2 और 3 होगा तो मैं इसको डिस्टिंग्विश कर लूंगा, क्योंकि उसमें 1 नहीं इन्वॉल्व होगा, उसमें 4 इन्वॉल्व नहीं होगा. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. The results of 2 tests on substance G are listed. A flame test produces yellow flame. Oh my goodness, yellow flame is my favorite. That indicates sodium. So sodium आपके पास ये है, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. गलत का मतलब रॉन्ग, ठीक है. आगे पढ़ो. Substance G is added to aqueous sodium hydroxide, a powdered aluminum, warm gently, a gas is given off which turns damp red to paper blue. ये जो पूरी स्टोरी लिख के दी एग्जामिनर ने, that story confirms the presence of nitrate ions. So nitrate ions यहाँ भी है, nitrate ions यहाँ भी है, तो right answer is going to be D. And that's the end of this paper, guys. Hope you get it. Thank you very much.